ये role of teaching in inculcating value. स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि कोई भी स्टूडेंट के अंदर में सभी गुण समाहित है। जितने भी जो भी गुण है, हमारे नॉलेज सभी के पास सब चीज का नॉलेज रहता है। उस नॉलेज को हमको सिर्फ जगाना पड़ता है। नॉलेज कहीं से ये नहीं होता है कि हम जगाना पड़ता है। आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जगा रहे हो, तुम दूसरे फील्ड को भी जगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के सभी गुण, सब पूरे ब्रह्मांड का गुण व्याप्त है मनुष्य में। उस गुण को हम सिर्फ जगाते हैं, जगाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हम मेरा जो फर्स्ट जो था वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू क्या है? हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक एज पर माय टॉपिक, रोल ऑफ टीचर्स इन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यू। तो व्हाट इज वैल्यू? द वैल्यू मींस द प्राइस टू एस्टीम, टू अप्रेस एंड टू एस्टिमेट। मतलब क्या है? वैल्यू ओरिएंटेशन इज एसेंशियल द प्लानिंग ऑफ गुड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड. It is a matter of experience that mankind react to human behavior, sometimes with approval and sometimes with disapproval. Society makes judgment on various kinds of human behavior. Value means क्या हुआ कि suppose a classroom order. Classroom क्या है? Classroom is the larger order. And a chalk. What is the role of chalk? Chalk का role क्या है? We write from chalk in blackboard. Blackboard में उसको लिखते हैं. That is the value of chalk. है ना? वो chalk का value है. ठीक है? और value orientation is essential for planning of good future for mankind. Next है moral value. What is moral value? Moral value क्या है? The kind of behavior approved by the people is called moral behavior, and the kind of behavior disapproved by the people is called immoral behavior. मतलब क्या है कि हम moral behavior और immoral behavior self हम उसको डिसाइड कर सकते हैं. An individual can develop moral behavior only when he understands what is good or what is evil, and what is right or what is wrong. What is right and what is wrong. Every person can decide. That is this consciousness of good and evil, right and wrong is called moral value. So next, the moral development is an important dimension of education. Moral development, तो इसमें क्या है कि according to Psychology of Child and Curriculum published by NCERT in 1983, following important moral value we have to need to develop honesty in words and deeds, truthfulness, self-respect and a desire to respect others, self-control and duty, consciousness, comparison. These are the moral values. These are we have to need to develop according to psychology of the child and curriculum. Next, what is significance of morality? These are the significance of morality. Morality can be defined as a system of personality traits that conform to the intrinsic nature of the individual and which are in accordance with the value approved by the society. Moral value refer to the conduct towards men at large in home, in the social and emotional spheres, and in the life of the outside world. Moral values, these are the moral values: honesty, tolerance, fellow feeling, truthfulness, injustice, honesty, self-restraint, independence, and moderation. Herbert said, the moral expression consists in the
the suppression of the lower and primitive impulses. Next. These are the moral code in increasing orders. Individuals, every person's individuals. I have role here within myself. I have role within myself. मतलब ensuring happiness in the self and health in the body. Then we have moral value in family. I have a role in my family. क्या role है? For example, ensuring feeling of relationship and prosperity. नेक्स्ट में सोसाइटी में तुम्हारा रोल क्या है? सोसाइटी में क्या है रोल इन द सोसाइटी? टू पार्टिसिपेट इन सोशल सिस्टम फॉर एंश्योरिंग जस्टिस, पीस एंड हार्मनी. एंड नेक्स्ट इज द नेचर एग्जिस्टेंस. आई हैव रोल इन द नेचर एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट रोल ऑफ टीचर्स इन इनकल्केटिंग वैल्यूज. व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर्स? टीचर्स का क्या रोल है? कि कमिटमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टीचर्स, एथिकल वाचिंग ऑफ द सोसाइटी एंड मोरल एजुकेशन टीचर. मतलब कमिटमेंट ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टीचर्स क्या है? व्हाट इज द कमिटमेंट? द कमिटमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टीचर्स इज वेरी एसेंशियल टू मेक द एक्सेलेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड मेंटेन पीसफुल कॉलेज एटमॉस्फेयर. And teacher should be a model to the student, character, behavior, and all things. Second is ethical watching of the society. So ethical watching of the second moral value क्या है? Ethical watching of the society. Ethical watching means watchdog. Ethical watchdog of the society. है ना? कि every teachers have the ethical watchdog. है ना? Teacher is supposed to be ethical watchdog of the society. He is a role model for the student and also for the society. A good teacher should possess a psychological knowledge of the different part of the being. It requires specific training for teachers before entering the profession. So every teachers have a knowledge of ethical watchdog of the society. Next is the moral education teachers. Next. These are the different approaches to value education. Different approaches: education approach, awareness approach, education approach, moral rating approach, analysis approach, commitment approach, or the union approach. है ना? Education approach मतलब the students are encouraged to make, है ना? The students are encouraged by the teachers, है ना? Then and awareness approach means क्या हुआ? The teachers presents value situations through readings, films, role playing, small group discussion, and simulation. Next is the inculcation approach. Inculcation approach means a positive and negative reinforcement by the teachers help value. And next is the moral reasoning approach. Moral reasoning approach. So teachers set out learning experiences which facilitate moral development. It consists of the student discussing a situation and by reasoning they attain a higher level of knowledge from moral reasoning approach. Next is the analysis approach. The groups and the evidence are encouraged to the study the social value problems. They are encouraged to determine the truth and evidence of facts and arrive at value decision. And every student can take value decision. This is the analysis approach. Commitment approach. Next is the commitment approach. That means it enables the student to perceive themselves not merely as passive teacher, but as inner relative members of the social group and system. These are the commitment approach. And then last is the union approach. The purpose is to help students to perceive themselves and act not as separate egos, but as part of the larger interrelated whole. That is the union approach. According to a statement of the Swami Vivekananda,
Education is not the amount of information put into your brain and run right there, undigested all your life. We must have life building, man making, and character making, assimilation of ideas. The idea, therefore, is that we must have whole education of our country, spiritual and secular, in our own hands, and it must be on national method as far as practical. मतलब कि सिर्फ पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए हमको सिर्फ एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, हमको उसका नॉलेज गेन करना चाहिए कि नॉलेज क्या है, उसका मीनिंग क्या है। हमारे अंदर सभी पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं, तो हम जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए हम आए हुए हैं, वो पर्पस को हम पूरा करेंगे। ठीक है। एक टीचर क्या है, ऐसे लाइक कैंडल, टीचर क्या है, कैंडल की तरह है, खुद जल के दूसरे को प्रकाशित करता है। ठीक है। मतलब टीचर का काम है अपने जल के दूसरे को प्रकाशित करना, और तुम लोग को प्रकाशमय होना है सही रास्ते में, है ना। ये मेरा टॉपिक था, इस टॉपिक में हम जो भी बोले, ठीक है। थैंक यू। Thank you, sir. Now, I would like to invite Arindam sir to address on role of teacher in promoting Indian language in higher education. Sir, please. Hello. Good morning, everyone, and good morning, respected our IIC President, Mr. Pankaj sir, and Rahul sir also. And before starting, at first I introducing myself. My name is Arindam Dev from the Electrical Department. I'm the Assistant Professor. So my main focus is today. What is the role of the teachers to promote the Indian languages to the higher education? So now, we also know that the language is only way to communications and expression that everything to anything. So without language is not possible. We are do in a single words. So, but today I don't use speech in English. I basically using the Hindi. उसका भी कुछ रीजन है कि हम हिंदी में क्यों बोलना चाहते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हम हिंदी में क्यों दे रहे हैं। सो इंडियन लैंग्वेजेस, सो अगर आप लोग थोड़ा इंडियन हिस्ट्री को देखें तो उसमें आप लोगों को दो बहुत महत्वपूर्ण दो लैंग्वेज को आप लोग को दिखा जाएगा। एक है पर्शियन, जो मुगल टाइम में यूज किया जाता था, और उसके बाद जो है वो है ब्रिटिश टाइम में, वो है इंग्लिश, जो अभी हम लोग खेल रहे और आगे भी खेलते रहेंगे। तो इंग्लिश जो है ये तो बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है इंडियन का, क्योंकि अभी दिखा जाए तो विदाउट इंग्लिश इज नॉट बी पॉसिबल योर communication in the education related or the admission academic related or any official related. So English is the mainly common languages now in the Indian language. So English जो है उसको तो सीखना ही पड़ेगा, उसको तो छोड़ के हम कुछ सोच भी नहीं सकते। अभी इंग्लिश को छोड़ के अगर देखा जाए तो लगभग 23 languages are including in our Indian languages. 23 in official and unofficially near about to 1100 languages are related. So a region wise इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, क्योंकि लगभग 65% इंडियन कंट्री में जो जितना भी लोग रहते हैं उसमें से लगभग 65% जो है वो हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अभी हिंदी जो है अभी कुछ रीजन में उसको लेकर थोड़ा बॉयकॉट चल रहा है। जैसे अब देखा जाए तो बंगाल में
देखा जाए तो बंगाल में, कलकत्ता में थोड़ा बहुत बाइकआउट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, फिर साउथ इंडियन में तो हो रहा है, और अब देखा जाए तो आसाम में, त्रिपुरा में, और इसको छोड़कर महाराष्ट्र में। तो इसी कारण, क्योंकि उधर में भी इसके पीछे भी एक रीजन है, ऐसे नहीं बात, क्योंकि अभी जो उन लोग का खुद का जो रीजन का जो मदर टंग है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सब किया जा रहा है, तो हम छोड़ देते हैं, हम उसमें नहीं जाते। सो फर्स्ट जो लैंग्वेज है इंग्लिश के बाद, वो हम लोग के लिए गुरुत्वपूर्ण लैंग्वेज है, वो है हिंदी। अभी हिंदी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद आता है बंगाली, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाली जो है वो लगभग बहुत इजीएस्ट लैंग्वेज है किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और किसी को समझने के लिए, जो बंगाल होता है इधर में चलता है, इधर में चलता है। उसके बाद देखा जाए तो वो है मराठी, उसके बाद एक एक करके सब आता है, पंजाबी आता है, उर्दू आता है, सब आता है। सो अब लोग का भी लगेगा कि ये सब चीज से हायर एजुकेशन कैसे रिलेटेड है, जो मेरा मेन फोकस है। अभी देखिए क्लास 12 तक जो बच्चे लोग जहाँ पे पढ़ते हैं, तो जैसे हम तो बंगाल से है, तो हमारा जो स्कूल था बंगाल में ही था, ऐसा नहीं कि हम बंगाल में रहते थे और झारखंड में आके स्कूल करते थे। तो बेसिकली जो होता है रीजन वाइज, जो क्लास 12 तक जो बच्चे लोग रहते हैं, तो रीजन में ही उन लोग का स्कूल होता है, तो उन लोग का जो लोकल जो लैंग्वेज होता है वो उसमें वो यूज करते थे। इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश तो सबके लिए ही है, बाकी सब जो बोल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हायर स्टडी के लिए जब उन बच्चे लोग को कोई दूसरा रीजन में जाना पड़ता है तभी हो जाता है दिक्कत। जैसे अब सोचिए, तो बंगाल का कोई लड़का अगर हाई स्टडी के लिए सपोज बेंगलुरु में चला गया, तो बेंगलुरु में तो बंगाली नहीं चलता है। अभी इंग्लिश जो चलता है वो तो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हर चीज में इंग्लिश भी नहीं बोला जाता है। जैसे आप रोड में हैं तो कहीं दुकान में जा रहा है, तो उधर में आप इंग्लिश में बोलेंगे तो सब लोग को नहीं समझ में आएगा, तो फिर क्या दिक्कत हो जाता है, उधर का जो खुद का जो लैंग्वेज है वो आपको धीरे धीरे सीखना भी पड़ता है, नहीं तो कम्युनिकेशन जो होता है बहुत तकलीफ में आ जाता है। ये दिखा जाए, ऐसा आप कभी देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, आई एम बेसिकली, हम इधर में कितना लगभग 3 महीने हुआ है इधर में आ चुके हैं, तो मेरा जो एजुकेशन था सब कुछ था बंगाल में था, ऐसा नहीं, तो बंगाल में था, उधर में हम इंग्लिश यूज करते थे और उसके बाद हम लोग बंगाली यूज करते थे, क्योंकि उधर में तो बंगाली यूज होता है। लेकिन इधर में जब आए, इधर में आने के बाद हमको हिंदी यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि इधर का तो लोकल जो लैंग्वेज है झारखंड में वो तो हिंदी है। अगर हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, ऐसे नहीं कि अच्छा बोल लेते हैं, चलाने के लिए जितना चलता है बोल लेते हैं, तो हिंदी अगर हमको ठीक तरह से नहीं आता तो हमको क्या करना पड़ता है, एक असिस्टेंट लेकर घूमना पड़ता है, हर जगह में एक असिस्टेंट लेकर घूमना पड़ता है जो हमको हेल्प करता है। तो ऐसे थोड़ी चलते, ऐसे तो नहीं चल पाते। से इसी कारण हर स्टूडेंट को नहीं, हर आदमी को जो आपका रीजन को छोड़कर कहीं भी जाना चाहते हैं, जाना होता है, तो उसके हिसाब से उन लोगों को वो जो उस रीजन का जो लैंग्वेज होता है वो जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कभी सोच सकते कि हम इस रीजन में है तो इस रीजन के बेस पे ही हम इधर में जॉब करना है, इसमें ही पढ़ाई करना है। अगर अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको वो उधर का लैंग्वेज नहीं आता है, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर उसको छोटा हमको सीखना पड़ेगा हम लोग। तो यही मेन मोटिवेशन है कि स्टूडेंट लोग को हाई स्टडी के लिए इंडियन जो लैंग्वेजेस होता है वो सीखना जरूरी है, नहीं तो बाद में तो आप लोग को बोल ही दिए कि असिस्टेंट लोग का नहीं तो घूमना पड़ेगा। तो यही बात, यही एडवाइस मैं सब लोगों को देना चाहता हूं कि इंग्लिश, हिंदी, बंगाली ये तो ठीक है, ये तो लगभग सबको आता ही है। इसके सिवा भी थोड़ा बहुत इंडिया का और भी जो लैंग्वेजेस है आप लोग सीख लीजिए। और इंडिया का बाहर अगर जाना हो तो उसके हिसाब से, अगर जापान में तो उसमें जापानीज जो होता है, उधर का जापान है जो होता है, जापानी में जाना तो उसका लैंग्वेज तो आप फ्रांस जो होता है वगैरह वगैरह आप लोग सीख लेंगे। यही मेरा मेन मोटिवेशन है स्टूडेंट लोग को कि पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ सीखना है। और एक चीज जैसे बोल देते हैं कि हिंदी हम जो बोल लेते हैं ना, ये किसके कारण है, मेरा चाइल्डहुड का फ्रेंड्स लोग, मेरा जितना भी चाइल्डहुड में जितना भी फ्रेंड लोग था वो ज्यादा से ज्यादा नॉन बंगाली था,
तो उन लोग हमसे बांग्ला सीखते थे और हम उन लोगों से हिंदी सीखते थे। इसी कारण अभी इधर में आके थोड़ा बहुत कह जाता है, हमारा मिलजुल के मेरा चल जाता है। तो ये होता है कुछ सीख हम सीखे ना, वो सीखना कहीं वेस्टेज नहीं होता है, कहीं ना जाके वो काम में लग जाता है। तो जो भी सीखो दिल से सीखो, क्योंकि उसको फल फ्यूचर में मिलता है। ऐसा नहीं कि वो वेस्टेज होता है। तब क्या चीज कहाँ पे लग जाए किसी को मालूम नहीं है, लेकिन लगता है। ये तो बात सही है। अभी मुझे मालूम हो रहा है कि मेरा हिंदी अभी कहाँ इधर में काम आ रहा है। इधर में तो हम इंग्लिश नहीं करते थे, लेकिन इधर में मेरा बहुत हेल्प कर रहा है। सो यही बोलना चाहता हूँ, जो भी सीखो दिल से सीखो, वो कहीं ना कहीं जाके वो काम में आता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir, for your guidance and beautiful words. Now, I would like to call upon Sujit Kumar sir for inspiring us on the topic, role of teachers in promoting Indian knowledge system. So please. Good morning, everyone. And thank you, sir, for giving me a chance on the topic of exhibition of teachers in Indian knowledge. Actually, जब ब्रह्मांड का अस्तित्व आया और इंसान का अस्तित्व आया, उस समय इंसान के पास कुछ भी नहीं था सिवाय सीखने के। तो सीखने के अलावा उसके पास कुछ था भी नहीं, ठीक है। और अभी हम लोग जब हैं जिस पोजीशन पे है, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड जो है काफ़ी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वो जो जर्नी है जहाँ पे इंसान के पास कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड का कुछ अस्तित्व नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और अभी जिस पोजीशन पे है उस टाइम तक काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है ना। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी में जो सिस्टम चेंज हुआ है, इसमें टीचर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, और जिसको हम लोग फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ डेली लाइफ में सीखते भी हैं और मोटिवेट भी होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट रोल है टीचर्स का, जो हमारे लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मजबूर करते हैं। तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं, इंडिया के कुछ ऐसे टीचर हैं जो इंडियन नॉलेज सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम को एक आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एक अपना अहम योगदान दिए हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके आज लोग ये 5 सितंबर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उनका योगदान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली वो एक काफ़ी अच्छे टीचर थे और एक अच्छे प्रोफेसर भी थे। उनका एक स्टेटमेंट था, ए ट्रू टीचर इज वन हु हेल्प अस थिंक फॉर आवरसेल्फ। एक्चुअली वो क्या करते थे, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे ताकि हम लोग अपने आप में सीखने के लिए कुछ अच्छा कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे आर्थिक अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं। इनका अर्थशास्त्र और इनका चाणक्य नीति आज भी हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में यूज होता है। चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र एक ऐसा मोटिवेशन है जिसके कारण से आज का आर्थिक स्थिति भी इंडिया का जब भी आर्थिक स्थिति कुछ इशू होता है तो उस चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र के हेल्प से हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक वेल नोन पर्सन है जो रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे वेल नोन पर्सन है जो इंडियन एजुकेशन को काफी ज्यादा इम्प्रूव किए हैं और वो जाने जाते हैं शांति निकेतन के स्थापना के लिए भी जाने जाते हैं। उनका मानना था कि टीचिंग जो है वो किसी भी स्थिति में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में जितने भी पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हर एक पर्सन को इक्वली एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाना चाहिए और उनका योगदान भी हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे पर्सन है जिनका कोर्स आज भी पढ़कर हम लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। उनका हर एक कोर्स जो बोला गया है या फिर उनका ये लेक्चर जो हम लोग सुनते हैं यूट्यूब के थ्रू, वो लेक्चर आज भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है मोटिवेट होकर अपना एक अलग डायरेक्शन चूज करते हैं और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सावित्री बाई ज्योतिराव फुले। ये एक इम्पोर्टेंट लेडी है जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क किए हैं। एक्चुअली सावित्री बाई ज्योतिराव फुले एक ऐसी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट काम किए हैं जो एक ट्रेडिशन जो बना था कि सिर्फ मेल को ही एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, फीमेल को पीछे रखा जाता था। एक सोसाइटी में एक ये विचारधारा बन गया था कि मेल जो होते हैं वही सिस्टम को लीड करते हैं, सोसाइटी को लीड्स करते हैं। उस ट्रेडिशन को तोड़ने का काम किए सावित्री ज्योतिराव फुले और फीमेल के लिए एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किए, फीमेल के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किए ताकि जो फीमेल लोग हैं वो अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर पाए और समाज में अपना योगदान दे पाए। इसके बाद नेक्स्ट है विनायक नारायण विनोबा। ये एक ऐसे टीचर हैं जो ह्यूमन वैल्यू को प्रमोट किए और इसीलिए इनको आचार्य या टीचर के नाम से भी अवार्ड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक मॉडर्न टीचर है। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं आई थिंक सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो भी अभी बुक्स है या जो इनका कोर्स है वो हमें मोटिवेटेड करता रहता है, लगातार मोटिवेट करता है ताकि हम अपना एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाए, अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर पाए और इनसे कुछ ना कुछ हम लोग सीखते भी रखते हैं। ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स को स्किल्स बनाने पे ध्यान दिलवाते थे ताकि स्टूडेंट जो है अपना पर्सनल स्किल्स इम्प्रूव करके एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है आनंद कुमार। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट काफ़ी गरीब हैं जिनको एजुकेशन अच्छा से मिल नहीं पाता है उनको फ्री में एजुकेशन देकर IIT जो पूरे इंडिया का एक रिनोवेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है वहाँ पे एडमिशन दिलाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाते थे ताकि स्टूडेंट जो है एक अच्छा एजुकेशन मिल पाए और वो अच्छे जगह पे प्लेस हो पाए। इसके बाद नेक्स्ट है खान सर। खान सर को तो कौन नहीं जानता है ना। खान सर जो है अभी के टाइम में सबसे फेमस पर्सन है और ये यूट्यूब पे इसी साल जो सर्वे हुआ था उसमें इनका 8th पोजीशन आया था ओवरऑल टीचर्स में। और इनका लेक्चर हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में भी देखते हैं। इनके वीडियो से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं और ये एक ऐसे टीचर हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेट भी किए हैं, इंस्पायर भी किए हैं ताकि स्टूडेंट जो है अपने आप को बेहतर पोजीशन में पहुंचा पाए। नेक्स्ट है वशिष्ठ नारायण। वशिष्ठ नारायण एक ऐसे टीचर थे, एक ऐसे पर्सन थे जो कंप्यूटर से फास्ट ये मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर पाते थे, इसलिए ये USA भी गए रिसर्च करने के लिए और इनका रिसर्च काफ़ी फेमस हुआ।
इसके बाद नेक्स्ट है प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा, SC वर्मा। ये IIT कानपुर के प्रोफेसर रह चुके हैं, अभी फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। और इनका खास बात ये है कि रिटायर होने के बाद भी एजुकेशन के फील्ड को अभी तक नहीं छोड़े हैं और घर पे ही छोटे छोटे बच्चों को जो 10th 12th पास है उनको इंस्पायर करते हैं, उनको पढ़ाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स है अपने आप को इम्प्रूव कर पाए और एजुकेशन में एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच पाए ताकि आसपास के एनवायरनमेंट को भी वो चेंज कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट है RK श्रीवास्तव। RK श्रीवास्तव एक ऐसे टीचर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को मोर देन 50 डिफरेंट वेज से ये सॉल्व किए हैं। इसके लिए इनको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। तो ये सारे कुछ ऐसे टीचर हैं जिनका रोल जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम में काफी इम्पोर्टेंट रह चुका है। ये जो नेम मेंशन है इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे टीचर सिर्फ यही टीचर हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। इनके अलावा वो सारे टीचर जो हमारे आसपास बैठे हैं, जो हमारे आसपास के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, वो टीचर भी, उन टीचर का भी उतना ही रोल है जितना इनका रोल है आसपास के लोगों को ये इंस्पायर करके अपने स्टूडेंट का जो पोजीशन है उनके पोजीशन को अपलिफ्ट करना या फिर लोगों को माइंडसेट को चेंज करना ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर पाए। तो उन सारे टीचर का भी इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो इसी के साथ मेरा जो लेक्चर है उसको एंड करते हैं। Thank you, sir. Now, I would like to invite Sujit Kumar, Uday sir, to address some role of teacher in developing innovation and entrepreneurship ecosystem. Hello, is it audible? First of all, good morning everybody who present over here. 5 September is celebrated as the Teachers' Day. We all know. Okay. It is for the honor of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan sir. So once again, I wish everybody to Happy Teachers' Day. I especially thank to Innovation Cell coordinator who has given me opportunity to speak few words in front of you people in this special occasion. We generally celebrate 5 September as Teachers' Day. But from this year, the AICT has instructed to all higher education institutions to celebrate 5 September as Shikshak Parv. And in that Shikshak Parv, AICT has instructed the higher education institution to organize some events, activity in their institutions. And in that activity, there is a part where we have to give some lecture on few selected topics. Out of that topic, my topic is a role of teacher. The role of teacher in developing innovation entrepreneurship ecosystem. Okay, as we know, nowadays innovation is very important. For developing any country in right direction, innovation is very important. Without innovation and research, a country cannot move forward in proper direction. So innovation, we all know innovation is very important. We all know zero is invented by an Indian. We all know what is the importance of zero.
That means India has the historical background of innovation, but due to some reason, the legacy or the glory of innovation was lost due to different reasons, like ruling of Maratha, ruling of Mughal, ruling of British. But once again, India feels that the glory or the pride we can get back because we have the young engineer, young inventor, young entrepreneur. So on that basis, the responsibility comes to the young students, young graduate engineers. And when the responsibility comes to the students, the responsibility comes again to the teachers to guide properly, to motivate properly. So out of those things, so we will give a detailed discussion of 2 to 5 minutes in this topic. This is my presentation outline. Okay. Okay. It was earlier role of teacher to guide, to instruct, to motivate the students. But nowadays the role of teacher has been changed, and it is now the role of teacher is to transform the student. Next is explain the challenges of the future. What are the explain the challenges of the future? To create interest in establishing their own entrepreneurship. Give the students power of commitment to move the society forward and develop confidence among the students to take risk. Develop confidence among the students to take risk. Okay, so because risk is very important. If you will take risk, definitely you will success. One day definitely you will success. So this is the role of the modern teacher for creating students as a entrepreneurs. So my topic is innovation and entrepreneurship. So first of all, we need to understand what is innovation. Here I have written innovation is a small size and entrepreneurship is a very large size. That indicates innovation is little in front of entrepreneurship. First of all, what is innovation? Innovation means nothing. Seeing the thing in new way, doing the thing in new way, creating the thing in new way, assembling the thing in new way. That is innovation. And nowadays, the innovation, the meaning has been changed. Innovation means what? If you have done very high level of innovation like rocket science, and if that innovation cannot generate money, that has no significant value. And if you have developed a small kind of innovation and that can generate money, that can be help a business, that can help a common man, in my words, that is the great innovation. So in nowadays, in modern life, your innovation should be business oriented, generating money oriented. So that is the innovation and entrepreneurship. In modern days or in today's life, the entrepreneur is very important. Innovation, I have seen a lot of person is doing very great innovation, but that is not able to generate money. So that has not very great value. If we will do a small business that can help the common man, that can generate money, so that is a great innovation. For the entrepreneur, you have to have some personal quality like new idea,
Their trial can demonstrate to be successful the ability to calculate the risk, the flexibility to adopt the changes in the market or in the industry. To meet the objectives. For entrepreneurship, first of all, you have to have a creativity so that you can get idea. And after getting the idea, you can create innovation. Because before idea or before generating any creativity, you cannot get any innovation. And after that innovation, that can convert that into entrepreneur in the business, in the generating of money. So those things, the role of the entrepreneur is first is conceptualization. You have to take concept, what is the need of the market, what kind of product is necessary, what people want. These things are there in the conceptualization. Next, you have to do research. What is the type of person is required in the market? Okay, how much person required? What is their desire? How they satisfy? These things you have to do in your research. If you research properly, your loss will be minimum. Next is the identification of the resource. That is also very important. We need to calculate what kind of resource we need. That is in form of land, money, area, raw material, or machine, or labor. These things we have to calculate. And taking in consideration all these things, we have to make a business plan. Because if you don't have business plan, you cannot consult or you cannot contact any agency for money acquiring, for arranging of money. Because we all know money is very important for any business. So next is acquisition of funds. There are several ways by which we can get money from the nowadays. The government is supporting startups and lot of separate funding agencies are there to give the fund. If you have proper proposal, you can apply them, and from that we can get the fund. And if we have the small amount of business we want to do, then we can generate money from the family, from the friends. Okay, so these are the methods by which we can generate money. Operation of business, that is very important. Once you set up the business, it is very important to run properly. So that in that we cannot compromise with the quality. We cannot compromise with the service. And at any cost, we have to keep our old customers. At any cost, we have to satisfy our old customers. That is the proper way of doing. These are the some list in India who provide fund for the students for doing startups and entrepreneurship. Next is references. Thank you. That's all from my side. Thank you all. Thank you, sir. Now, I would like to call upon Dr. Rahul Kumar sir for inspiring us on the topic role of teachers in high tech such as AI, ML, ABGC, AR, VR, metaverse, etc. in teaching learning process. Sir, Good morning to all respected faculty members and all staff from Dukla Engineering College and all my dear students. So first of all, happy Teacher Days to all of you. So actually today already you know that Teacher Day and we are celebrating today is the 6th September. So before coming to my topic,
That is the role of teachers in the artificial intelligence, machine learning, and high technologies. Okay, so I will take not much more time because today all you are in joyful mood, and you know that this is a very vast topic, so it is not possible to cover all the things in the 5 and 10 minutes. But I will explain briefly all these topics. So before coming to start, first of all, I would like to thank my all guru, my all teachers. Means you know that our first guru is our parents, okay, and everyone. So our first teachers and first school is our family members and our parents like mother and father. Then after, I would like to thank our teachers from my journey of all academic journey from suppose starting school life to college life, BTech, MTech, doctorate. So I would like to thank all my teachers and all my guru. So सभी गुरु और टीचरों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जो ऑलरेडी सबको पता है, that is गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये पंक्ति जो है कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है और हमारे प्रिंसिपल सर ने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे यदि हम आज टॉपिक पे जाएंगे जो कि रोल ऑफ टीचर इन हाईटेक सच है AI, that is the artificial intelligence, machine learning, metaverses. All these topics are very vast topics. So I will explain briefly in our daily life how we are using all these techniques. But here the very important role of teachers. How the teacher will implement all the things in the education to improve the quality education as well as the using the technology, higher technologies. So dear student, one thing is very important. Because now 20 to 2021, that is the COVID situation in our country. जो हम लोगों ने 2 साल कोरोना और कोविड सिचुएशन में जो पार किए हैं, okay? So before COVID situation in the classroom, basically the teacher focuses on the blackboard and the chalk and like simple projectors or smart like digital boards. So इससे पहले हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को इससे पहले कहाँ थे? यदि हम लोग बात करेंगे इससे पहले, you know that the very Hollywood movies are there, science fictions movies. So साइंस फिक्शन मूवी में हम लोग रोबोट्स, ट्रांसफॉर्मर, बहुत सारे चीजों को एक्चुअली इन द हॉलीवुड मूवीज दे आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर्स एंड दे ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द विजुअलाइजेशन लाइक अ मूवी. सो हम लोग अभी तक जो मूवी में बहुत पहले साइंस फिक्शन मूवी हम लोग का है ऑलरेडी. यदि हम लोग बॉलीवुड का बात करेंगे तो हम लोग का रजनीकांत का रोबोट मूवी जो है, इसमें भी हम लोग का साइंस फिक्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है. और आज के डेट में यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो ये कोविड सिचुएशंस के बाद, कोविड सिचुएशन जो हम लोगों के साथ में हुआ, तो अभी जितने सारे स्टूडेंट और जो भी फैकल्टी मेंबर्स थे वो सिंपल वे में पढ़ाते थे. लेकिन यदि आप रोज बात करेंगे हम लोग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का, क्या हम लोगों ने कुछ भी यूज किया है अभी तक? क्या अभी जो भी हम लोग टीचर है क्या इस कुछ भी रोल प्ले कर रहे हैं? तो यदि देखा जाए ये कोविड सिचुएशन में हम लोग इससे पहले कुछ भी नहीं पता था कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे. चाहे जूम सॉफ्टवेयर हो या गूगल मीट हो या फिर टेक्समिंट हो, टिकमिंट हो, जो भी सॉफ्टवेयर है हम लोग अभी उसके बारे में तो जानते नहीं थे. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली ये जो टॉपिक है, एक्चुअली ये सब्जेक्ट नॉलेज है जो कि मैं सिंपल एग्जांपल वे के थ्रू से ही आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डेली लाइफ के एग्जांपल से मैं बताता हूँ. एक्चुअली यू हैव ऑल ऑफ यू एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स, सो यू हैव ए गूगल असिस्टेंट, यू नो द एलेक्सा, ऑल द थिंग्स. सो व्हाट दे वर्किंग? The inputs given, they basically think about what are the questions and what are the feedback and what are the knowledge. Accordingly, they just give output. So all the things are the basically mix up of artificial intelligence and the machine learning.
इससे पहले यदि एजुकेशन सिस्टम में बात करेंगे तो देखिए एजुकेशन सिस्टम यदि हम लोग जूम के बारे में बात कर लेते हैं या जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। तो यदि हम लोग सिंपल वे में यदि पढ़ाई का बात करते थे या ग्रेडिंग सिस्टम्स का बात करेंगे या डिफरेंट वे में यदि हम लोग बात करते हैं, तो इससे पहले क्या था कि जैसे हजारों स्टूडेंट थे, अब उसका सिंपल वे में हम लोग ग्रेडिंग करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा लॉन्ग टाइम हम लोग को लगेगा। वी हैव स्पेंट months of time to just publish the result, okay? But due to this artificial logic, machine learning, we have developed so many apps and software. We just give some questions in the Google Sheet, Google Classrooms, all the things. So these are the very important things. So now all the things are developing stage. Already in other countries, they are already utilizing all the things. But in India, only in COVID situations, the teachers know the importance of all the things, all the software, all the apps. Now, in these days, online platforms, through these apps, utilizing these technologies, artificial machine learning, you know that in education system, the booms like online education is improving day by day. You know that in simply we just attend all the lectures, workshops through online mode. So it is trends during the COVID situation only. So you know the bad and good, all the things to the COVID. So here just one slide. So artificial intelligence machine learning, next slide. So these are some definitions of the artificial intelligence and machine learning. Okay, next slide. Main role of artificial intelligence in the education system. Next slide. So you know that digital lessons, already I have discussed that. What are the importance? Suppose some students have missed the classes. They are not physically present in the class. But due to that software and actually, we are not using all the basic things of artificial intelligence machine learning because there is some assistant. We have to develop some app. Suppose some students are not present today, but some virtually and some assistant we have to develop. So can they easily in the home they sit and like a Google Assistant, you have just some queries, some questions. So we have to develop some app like using the artificial intelligence machine learning, and they will give your answers and all the solutions. But we are not doing this thing. Only we are doing like a Zoom or recorded videos and some questions, that feedback system, all the things. But suppose you know that when you use a Gmail, suppose हम लोग Gmail में कुछ करते हैं या कुछ जल्दी भूल जाते हैं और हम लोग सबमिट करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली फीडबैक मैसेज आता है. You know that thing, warning message, feedback message. You have just put like you have forget to attach folder like that. So what is this? All the things are the artificial intelligence, and they are the sets of machine learning. तो ये सब क्या है? तो ये सब हम लोग देख रहे हैं डेली लाइफ में. तो एक्चुअली अब हम लोग का समय आ गया है कि सभी टीचर्स का जो इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए, सब सारी चीज को इम्प्लीमेंट करना. अभी तक जो हम लोगों ने जितने सारे बेनिफिट देखा होंगे, 24/7 एक्सेस टू लर्निंग बेनिफिट्स, द बेटर एंगेजमेंट, लेस प्रेशर, ये जो सारा चीज है ऑलरेडी कुछ तो आइडिया हम लोगों को आया है ऑनलाइन में. और खासकर जितने सारे स्टूडेंट ऑनलाइन पीरियड में पास कर गए हैं, उन लोगों को भले ही लगा होगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा, लेकिन उन लोगों का ऑनलाइन जो पीरियड था कम से कम बहुत कुछ जाना है कि ऑनलाइन घर बैठे भी हम लोग बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे कुछ कर सकते हैं. तो रोल ऑफ द टीचर है, ये सारे एप्स को डेवलप करने का समय है हमारे कंट्री में भी, जिसमें हम लोग गूगल असिस्टेंट जैसे बात होती है उस तरह से हम लोग ऐप के जरिए में अपने सारे क्वेरीज जितने भी होता है, यदि कोई स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो एट ए समय घर में बैठ करके भी सारे क्वेश्चन, सारे सॉल्यूशंस जैसे गूगल असिस्टेंट से होता है उस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं. तो यहाँ तक तो बात थी अभी हम लोग का 2D का. हम लोग अभी तक बात कर रहे थे 2D, मतलब जैसे कि आप कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रहा है और आप नहीं जा पाए तो अधिक से अधिक हम लोग क्या करते हैं, सिंपल जूम से या सिंपल मेरे पास प्रोजेक्टर है तो हम लोग घर में बैठ करके जो उसको अटेंड करते हैं या प्रेजेंट करते हैं. ओके, दैट इज द ओनली 2D, दैट इज ओनली 2D. लेकिन क्या नेक्स्ट
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम लोग 3D के बारे में बात करें, अभी तक गेमिंग में आप लोग को पता होगा, या हम लोग 3D जो मूवी का बात करते हैं, तो जो गेमिंग में ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे चीज को देखते हैं। और मूवी में अवतार है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं अवतार मूवी का भी बड़ी बात कर सकते हैं। तो यदि हम लोग 3D का बात करेंगे, जो कि हम लोग का नया टेक्नोलॉजी, दैट इज द न्यू वर्ल्ड। हम लोग का जो ये दुनिया है इससे अलग, दैट इज द वर्चुअल वर्ल्ड। यदि हम लोग बात करेंगे वर्चुअल वर्ल्ड, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज मेटावर्स। That is metaverse. Verse, that is the come from universe. Mean beyond the universe. Beyond the universe. मतलब इस यूनिवर्स से beyond, अलग ही दुनिया, एक वर्चुअल सा दुनिया। तो वर्चुअल सा दुनिया की यदि हम लोग बात करेंगे तो मूवी में तो हम लोग हॉलीवुड की मूवी में या कोई भी मूवी में तो हम लोग दिन रात देखते हैं साइंस फिक्शन मूवी में कि हम यहाँ पर बैठे हैं, हम दूसरा दुनिया में जाकर चल गए हैं। या यदि आजकल गेम का बात करेंगे तो गेम भी आजकल गेमिंग में तो बहुत सारे 3D हमको लगता है कि हम गेम के अंदर में चल गए हैं। लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स इन द एजुकेशन सिस्टम, हाई टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, तो इसके लिए तो एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। सपोज दैट बेसिक एजुकेशन का यदि हम लोग बात करते हैं, सपोज दिस इज सिंपल एग्जांपल हियर, यदि हम लोग क्लासरूम में पढ़ा रहे, कोई टीचर जैसे डायनासोर्स के बारे में सिंपल। अब यदि सोचिए कि उस वर्ल्ड में, उस वर्चुअल वर्ल्ड में यदि स्टूडेंट यदि घुस जाए और सामने से आप मान लीजिए कि आपके पास जुरासिक पार्क मूवी में ही हम लोग जा करके हम लोग वहां पर देखना चाहेंगे। स्टूडेंट हर तरह से वहां पर लय फील कर रहे हैं, उन लोग के बीच में दौड़ रहे हैं, उन लोग के बीच में हम लोग चल रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी आप लोग? तो उसके लिए गैजेट्स है आपके साथ में, जैसे हेडफोन, हेडसेट, पूरा पैकेज आता है। तो उस तरह से यदि टेक्नोलॉजी बच्चों को बताया जाए तो सोचिए कि हम लोग के माइंड में जो इमेज होगा कि हम लोग रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हम सोलर सिस्टम्स के बारे में यदि हम लोग बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, आप तो ऐसे बोर्ड में बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम, these are the planets, these are the different planets। बट सपोज सोचिए कि यदि इस मेटावर्स टेक्नोलॉजी हम लोग एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी क्लासरूम से यदि हम लोग बनाते हैं, तो वो स्टूडेंट खुद यूनिवर्स में लगेगा कि वो यूनिवर्स में चारों तरफ से उड़ रहा है, वो पृथ्वी के पास जा रहा है, अर्थ के पास जा रहा है, वो डिफरेंट प्लेनेट्स के पास जा रहा है, वो लैंड कर रहा है और उस चीज को वो फील कर रहा है। तो वो जो टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में यदि इंप्लीमेंट हम लोग कर देते हैं, तो ये कितना वास्ट और कितना एडवांस टेक्नोलॉजी होगा, और ये दैट इज द इंप्रूवमेंट इन आवर एजुकेशन। सो ऑलरेडी आई थिंक यू नो द फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, जो कि उन्होंने फेसबुक का नाम जो है कि मेटा प्लेटफॉर्म भी कर, इसी के एस्पेक्ट में जो उन्होंने फेसबुक जो इंटरनेट बेसिकली हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे बेसिकली इंटरनेट बोल रहे हैं ना, तो आने वाला समय में ये इंटरनेट खत्म हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे सिर्फ मेटावर्सेस का, सिर्फ मेटावर्सेस। आपको यदि कहीं शॉपिंग मन करना जाने का, आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर शॉपिंग करके आ सकते हैं। तो वो बहुत सारा लेंथी टॉपिक है इस सब के बारे में जानना, लेकिन एजुकेशन सिस्टम का ही अभी हम फोकस कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में यदि हम लोग मेटावर्सेस, यदि हम लोग सपोज बात कर रहे हैं कि आज यहाँ पर मैं प्रेजेंट नहीं हूँ, सपोज मैं जो बोल रहा हूँ आई एम नॉट प्रेजेंट हियर, लेकिन मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कैसा लगेगा? मैं बैठा हुआ कहीं भी इंडिया का कोना में या कहीं भी फॉरेन में बैठा हुआ हूँ, और सपोज दैट मैं अभी आप लोगों के सामने 3D इफेक्ट्स वर्चुअल मेटावर्सेस के थ्रू से लाइव प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कैसा फील होगा? नाउ दिस इज द टेक्नोलॉजी, नाउ वी हैव टू इंप्लीमेंट ऑल द थिंग्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मेटावर्सेस टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम आप लोगों के सामने यहाँ पर हैं। You just feel this world, you just try to feel, I am not here but I am presenting in front of you only through this metaverse। आपको कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना है, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, सपोज यू आर नॉट देयर, but you have to present like only metaverses। So in education system we will try to improve all the things like artificial intelligence, machine learning and metaverses. This is a very very vast technology, and now all the companies, software, all the things are doing their work to implement all the things। So next slide। So like that already I have told this one, in movie already we have seen many times। मूवी में हम लोग तो देखते ही है ना, हमेशा कुछ भी होता है, लेक्चर से कुछ भी आया, मीटिंग हो रहा है, वर्चुअली प्रेजेंट हो गया है ना, तो
तो वही चीज जो हम लोग मूवी में देखते हैं, यदि वो क्लासरूम में या एजुकेशन सिस्टम में हम लोग के पास आ जाए, तो कोई बड़ा से बड़ा प्रोफेसर हो या दुनिया का कहीं भी कोना में प्रोफेसर हो, यदि आपके सामने स्टेज में परफॉर्म करे, आपके क्लास में वो पढ़ा रहा है टहलते हुए, तो वो आपको इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा। तो यही जो है कि मेटावर्सेस के बारे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो हम लोग डेली लाइफ में मोबाइल फोन से शुरू करते हुए दिन भर जो मूवी देखते हैं, वो सारा चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका मेटावर्सेस टेक्नोलॉजी ही है। लेकिन अब समय आ गया है कि एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर के सारे इस फैसिलिटीज को कॉलेज हो या कहीं भी स्कूल लेवल में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करना चाहिए। तो बस मैं यही कहूंगा कि ऑल माय डियर स्टूडेंट, ये जो हम लोग टेक्नोलॉजी को खाली गेम में देखते हैं या हम लोग जो भी दिन भर मूवी देखते हैं, इसको थिंक करना चाहिए अभी का डेट में हाउ टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज यू आर द फ्यूचर, यू आर द फ्यूचर, you have a knowledge, you have a software knowledge, you have a coding, you have all the things, you have a mechanical, civil and the computer science engineering, all the things you have a basic knowledge. So try to implement all the things in the latest technologies of the education and try to improve. So okay, thanks to all of you.